learned and very achieving personalities who are here, like Dr. and Mrs. Singhi, and many others whom I cannot identify from this distance because unfortunately over the last 2 years my eyes have been afflicted with macular degeneration. So I have some problems. I have also problems in hearing, and I have also problems in 10 other systems of the body, but everything is still functional. And and I'm a firm believer in the fact that if you keep a machine working, it works, otherwise it jams. So I spend my days going to this NGO which Surjit mentioned about, where we bring up children from the villages of Punjab who are bright but have very poor means of information or of support, financial support, and if they are found fit by our tests, then we keep them in Chandigarh in a hostel for 100 kids, both boys and girls, and bring them up for 2 years with total responsibility for their care, which means they go to school, they come back, they have tutorials for 5 hours a day, they have their meditation classes, they have their physical classes, they have their time for study and assigned work, and they have their boarding and lodging, all free, totally without any payment. And out of these roughly 50 kids which we take every year so far, which we are now going to enlarge to more than 100, these 50 kids, we take roughly 30 in the non-medical group and 20 in the medical group. And out of this 50, our placement rate, not pass rate, placement rate in governmental institutions is exceeding 85%. We spend about 1.5 crore on these kids, and all this money comes from friends and relatives. Anybody who pays us becomes our relative. So that is what I'm busy doing, and that's what keeps my head working. Okay, now this talk aside, let me come back to the talk of today. I had chosen the topic lessons learned during 50 years of pediatric practice. In fact, I loitered into pediatrics just by chance or by compulsion. When I passed the MBBS examination in the medicine group, I was number 2 in order of merit. The rule was that after the first year, both of us got house physicianship in medicine. But after the first year, if we had to do MD, only MD medicine was available. And if MD medicine has to be done, then the first boy got a job as a, let's say, he was called demonstrator in medicine under the Department of Medicine,
and the second boy got demonstrator in pediatrics in the Department of Medicine, because pediatrics was not a separate subject or a separate department at that time, till almost 1958, and I had passed in 1954. And MD Pediatrics had not started till 1968 by the MCI. So I had no alternative but to work in pediatrics and appear in MD medicine. And my life was pretty hard because I had to work in the very heavy pediatric unit. हर रोज़ OPD होता था, and after 2 o'clock, have quick lunch, come back, see all the 30 cases admitted. By 6 o'clock, I would finish that and go to Department of Medicine, where my roommate and my friend, Dr. P.S. Gupta, who later on became Professor of Medicine in Maulana Azad, he would give me cases to see which had been admitted on that day, and he had seen and thought they were of interest because they had some complication or the other which was difficult to guess, and I would often miss it. But nevertheless, he was a good teacher, and I was perhaps a good learner, and we both passed the MD medicine, and he came and joined Irvin Hospital, and I came and joined the All India Institute of Medical Sciences as a registrar after almost 3 years of having been already a registrar in Indore. So at that time, there was an opportunity when I was offered post of lecturer in medicine, and I went to ask Professor Powala, what should I do? Should I accept it? He said, take my advice, take nobody's advice. Go home over the weekend, think over what will make you happy, what will keep you happy. So I came back on Monday, and like our habit of having coffee at 11 o'clock on Monday, he asked me, so Bridge, what have you done? What have you decided? So I said, sir, I can't leave these kids. And his immediate response was, you will be a happy man because you've decided to marry a poor girl whom you love rather than a rich duchess for money. So that was the situation. People who took medicine became rich. People who took pediatrics remained poor. So anyway, I chose that because I loved, because nobody ever grumbled. No child ever grumbled. No child ever complained. The best thing that happened to you was that if the child was getting well, he would give you a smile, which an adult patient never ever gave you. So that was the main reason why I took on pediatrics. I said, children are grateful for the services you render them. Now, this is how I came up in pediatrics. Pediatrics at that time was unwanted subject. The total number of pediatrician delegates who came to the annual pediatric congress at Indore in 1957 were 60 or so. That was all. And 3 of us, myself, 2 house surgeons, and Professor Powala,
had to go crazy managing those 57 people and they're receiving them, putting them up in hotels, making programs, looking after speakers, looking after everything is being done. And at the end of it, when I asked Professor Povala, I said, sir, do you think it was worthwhile? So what did we gain? He says, Bridge, we taught Madhya Bharat how to spell pediatrics. He was a man with great understatement, and this was his way of explaining what we had gained was that we can now spell pediatrics better. And he was quite right, because mere ghar ke bahar, the board said BNS Walia pediatrician. So mera ek cousin tha who had come back from England after doing aeronautical engineering. तो वो आके अंदर मुझे कहता, यार ये क्या तुमने बाहर लिख दिया पेडेस्ट्रियन? तो that was the condition of an England returned Indian कि pediatrician और pedestrian में फ़र्क नहीं मालूम. So खैर anyway, leave that aside. I'll come to the main theme of my today's lecture. Why did I think of this lecture? And I especially made a request to Professor Sujit Singh to arrange for this lecture, because I think history of medicine is important for people to know. And people have to also learn how people learn. And there are lots of things which we don't learn from the medical books. These are not taught in the syllabus. You learn them by seeing your teachers, your colleagues, and many others. So I'll start with the first lesson I learned. We had finished the MBBS examination. The result was to be 6 or 8 weeks later. So I went to my maternal uncle's house, who was a MBBS doctor practicing in Hoshiarpur. So he said, do you remember your Hippocratic oath? I said, yes, sir. Okay, I want to tell you a story about that. And the story was that in 1938, when I was barely 6-year-old, he had developed typhoid, and the typhoid had recurred after 3 weeks again, and a third recurrence again after 4 weeks. So he had typhoid for almost 10 weeks, very seriously ill with encephalitis and everything. And the physician who was looking after him, there was no MBBS doctor in Hoshiarpur district town at that time. One Dr. Muhammad Yusuf used to come from Lahore in his own car, driving it himself on every Sunday morning, and go back by 4 o'clock in the evening to reach his home by 8 o'clock. And this happened for 10 Sundays. When my uncle had recovered, my younger uncle, the uncle younger to him, went to his house with a basket of fruit and a wad of notes, about 5,000 I am told at that time, and bowed before him and put this on his table. He says, what's your name? He says, my name is Pritam Singh. Pritam Singh, pick it up and take it away. So he says, sir, I have to make a request. Okay. Sir, you've been coming for 10 weeks, 120 miles each trip on either side. You've been spending all your Sunday with us. You missed your fees, your patients in Lahore. And we thought we cannot compensate you enough for saving my brother's life, but we would like to
give you something, a token of our respect. I don't accept this, says Muhammad Yusuf. Pritam Singh, take it away. Pritam Singh was still hedging. So Muhammad Yusuf gets up from his chair. He says, Pritam Singh, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਮਝਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੈ ਕੇ those who don't know Punjabi what he said was that a dog does not eat a dog's meat. How can I take money from a doctor who was ill and therefore take it away? I am not worse than a dog that I'll accept a dog's meat. So my uncle came back to Hoshiarpur and told this story to everybody, and my uncle thought it best that to a young doctor who had just appeared in this exam, this should be the first lesson to be ethical in his jobs. And I took that lesson very seriously. I think my second teacher was my mother. I used to be afraid of being dark, in the dark. So when I was 5 or 6, she, on a dark night, there was a park outside our house. She says, Bridge, chal, sair karan chalde. So she took me right into the darkest corner. And मैं क्या मैंने तो डर लगता तू believe करता है कि God is everywhere. If God is everywhere, then He will protect us. Nothing will happen to us. Let's take our walk and then we'll go back home. So we came back home safely. And that is how the fear of dark was eliminated from my mind. Secondly, what she did was, she told me, if you have to ask anything, ask from God. Everybody gets everything from God. Don't believe that any officer, anybody can give you anything. They are all mangtas before the God. That point stuck in my mind. So when I became a director, I had several occasions to face which were tough with the minister of that time. But I knew that I am not going to ask anything from him. So why should I be afraid of him? I don't want anything from him. Because the day I had joined as director, I had decided I am not going to ask for extension. I am not going to ask for any appointment outside. So all this, if you don't want, then what are you afraid of? He cannot terminate your services because thanks to Lalit Agarwal, the Supreme Court has given an order that once a director of AIIMS was selected and appointed for 5 years, he could not be dismissed unless he does two things. Either he misbehaves with a woman or he misbehaves with the money of the institute. I was not going to do either of the two things, so I was not afraid. Now this is how, characters are built. And I wish somebody was as nice, as good, and as... My mother was totally illiterate. She was from a village, 10 miles from Hoshiarpur. Those who know Hoshiarpur, Bohan is the village 10 miles from Hoshiarpur. And she was only educated in Punjabi language because she could read scriptures. While my father was an LLB honors, and he was third in the University of Lahore at that time in the law examination.
Yet it was not considered necessary that the woman should be educated. She should be from a respectable family. That was all that was important. So that is my background, which explains to you how I behaved oddly with some people and at some times. Anyway, now I come to the today's lecture, which is to talk to you about things which are not given in our syllabus, and those are important. One of the best advices I had was at AIIMS, where Professor Steigman, a visiting professor, called three of us, Professor Ghai, me and Sinclair, and said, what is the duty of a head of department? All three of us gave something. None of us gave what he wanted. And he said, no, you missed, all of you have missed the point. The first duty of the head of the department is to develop a team. If you have a good team, you will have a good department. Equipment does not matter, building does not matter. If you have a good team, they will do everything. And they will publish with no equipment. But if you have a rotten team, you may have lakhs worth of equipment, it will lie unused. So that is where we were. That was the best advice I ever had, and I put to use when I came to Chandigarh. कहते हैं कि सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास 10 टोटल फैकल्टी मेंबर्स थे मेरे वक्त। उनमें से सिर्फ 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे, एक सरोज मेहता और एक प्रतिभा सिंघी। बोथ वर फर्स्ट रेट in their job and both achieved a lot. But that doesn't mean those who were not gold medalists did not do well. They could also be trained to do very well, and they did very well. I'll come to their job and their work later on, so that उसका मेरा पर्पस ये है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है इस ऑडियंस में, वो ये मत सोचें कि उनकी तो किस्मत ही ख़राब है। ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था, मैं तो पहले 5 में आया करता था, पहले 2 में भी नहीं आया करता था। You know, when I said कि I was number 2 in medicine, that doesn't mean I was number 2 in the whole batch. Whole batch में मैं 5वां ही था। You see, so it is not necessary to be number 1. It is necessary to be dedicated, to be thorough, to go to the depth of the thing and do your job with honesty. Till you have understood it, don't go beyond it. And then I think God helps you. I got an invitation from MCI कि आप एक कमेटी बनी है for deciding regarding what new subjects to be included in the reformed MBBS curriculum. And you are to represent pediatrics. So I jumped at the proposal. I went there. Later on I'm going to come and talk to you कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर एक्सेप्ट करो, उसके बगैर यू आर लेटिंग डाउन पीडियाट्रिक्स। अगर आपको कोई कहता है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनो, बन जाओ, नहीं बनोगे तो यू विल लूज आउट समथिंग। आई टेल यू दैट ऑल्सो। टाइम थोड़ा है, सारा कुछ बता नहीं सकता मैं, पर खैर जब वहाँ पहुँचे तो आई थॉट ऑफ 2 men who could be of helpful to us. एक तो थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, वो दिल्ली के ही थे, एंड आई हैड मेट हिम ऑन ए फ्यू ओकेजन्स
because I used to go and lecture in IMA Delhi, and I had taken an article written by Dr. Kaul of Jabalpur, in which he had studied the percentage of pediatrics in the general practice. So उसमें that vice president got the idea कि जनरल प्रैक्टिस का इतना परसेंटेज तो पीडियाट्रिक्स से होता है. उसने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा कि जनरल प्रैक्टिस का 70% तो पीडियाट्रिक्स होता है, तो पीडियाट्रिक्स को सेपरेट सिलेबस बनाना चाहिए. उसको एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसको ध्यान से. एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग. व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि हमारा बैच जो पीडियाट्रिक्स का था, पोस्टिंग था, उस वक्त हमारे साथ एक मिस गर्ग हुआ करती थी. मिस गर्ग अपनी समरीज भी के शीट की नहीं लिखती थी. तो पोवाला साहब ने उसको पूछा, मिस गर्ग, व्हाई दिस bad attitude towards pediatrics? So she says, no sir, this is good attitude towards pathology, because pathology, the exam is 2 weeks away. We were posted towards the end of 4th year. So that was the kind of irresponsible reply, rather than saying I couldn't get time or anything or making any excuse. She was blunt enough to tell पोवाला कि मैं तो तेरा सब्जेक्ट इग्नोर ही करूँगी, कर ले जो करना है. तो you know, that was the state of pediatrics at our time. I'm talking of 1953 or 53, because I passed in 1954. तो ये हाल होने से वो जो कार्ड मैंने उसको दे दिया, तो that made his statement very useful. Or during the coffee interval, I met the UNICEF representative, who was also a member of this committee. तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या कहने जा रहे हैं. वो कहने लगे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है इट्स ए वेरी सिली क्वेश्चन कि यू आर डिबेटिंग pediatrics should be a separate subject or not. Even Pakistan has done it. So I caught the point. मैंने कहा, sir, can you do me a favor? He says, what can I do? I said, sir, you just repeat your statement that even Pakistan has done it. So he said the same. He said, Pakistan, which is a far underdeveloped medical education system, has done it. मेरे पास जब तक बारी आई, WS वालिया तो बहुत एंड में आती बारी, पहले ए से शुरू होता है. तो ophthalmologist wanted his subject to be separated. ENT man wanted his subject to be separated. I had a whole lot of things to say about child is not a small man. वो एक ऐसे हमने लिखा था कभी, child is not a small man. इसका सब कुछ अलग है, इसका मेटाबॉलिज्म अलग है, इसकी ग्रोथ अलग है, तो इसकी इम्यूनोलॉजी अलग है, सब कुछ अलग बोल दिया हमने. उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट वाज, ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू अ होल. ए पार्ट लाइक आई और ईयर is not equal to the whole child. You lose an eye, you don't die. But if you have a pneumonia, you can die. So only pediatrics became accepted as a separate subject in that meeting. So fortunately for me, a boy from Indore, Bharat Chapparwal, was vice president of the Medical Council of India.
तो जब ये ख़त्म हो गया तो टी टाइम पे हम सब मिले, तो मैंने भरत को कहा, भरत भाई हमने अपना काम कर दिया है, अब तुमने अपना काम करना है। कहता क्या करना है? मैंने कहा तुमने इसको स्टीयरिंग कमेटी में से निकाल के जाना है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में से निकालना है इसको। कहता पार्टनर ज़रूर हो जाएगा। पार्टनर वॉज अ टिपिकल वर्ड ऑफ इंदौर। कोई भी किसी से बात करनी, पार्टनर ये कर दे, you know, like that. So he recognizing me as a Indore boy, he said, partner, फिक्र नहीं करो, बिल्कुल हो जाएगा। So and he stood by it and saw to it कि executive committee also passed it. From 93 onward, pediatrics became a separate subject in MBBS examination. As a result, when you go to any place now, you have 100 kids for MBBS to be examined also, क्योंकि 100 का नंबर है या 150 का नंबर है MBBS का, तो ये तो हर साल 150 बच्चे वेल टॉट इन पीडियाट्रिक्स कम आउट। देन केम द ICDS के ब्लॉक, बद्री टंडन हैड started one ICDS block in each state, and Punjab ka Noorpur Bedi, which is about 30 miles from Ropar, beyond Ropar, was selected, and we are the nearest medical college, we were selected to run that project. I, with Anil Narang, ran that project, and we did a fairly good job as a result. As a result, now Punjab has 8 ICDS projects which are funded by the Government of India and run by the Government of Punjab. Then comes ICC. ICC के बारे में Dr. Surjit Singh has told you about it. What happened was that we were noticing repeatedly in the clinical history that the child with ICC had been deprived of breastfeeding and had been shifted to top feed, which was generally kept. कोई भी दूध हो, गाय का हो, बकरी का हो, किसी का भी हो, उसको पीतल के बर्तनों में रखते थे और वो वही उसमें से उसको बच्चे को पिलाया जाता था। बट वी डिडंट सेंस द सीरियसनेस ऑफ मिल्क बीइंग केप्ट इन द पतीला, ब्रास पतीला। बट a thought was lurking all the while कि ये कुछ पीतल का तो चक्कर नहीं है। So one of the things I have advised later on is भाई कोलैबोरेट करो, जिसको नई ज़्यादा साइंस आती वो कोलैबोरेट करे। और मेरे को ज़्यादा साइंस नहीं आती थी, बिकॉज मैं तो 1949 से 54 में पढ़ा इंदौर में, विच वॉज ए न्यू कॉलेज। कोई इक्विपमेंट ही नहीं था सिवाय एक साइड लेबॉरेटरी जिसमें कि सेंट्रीफ्यूज और स्टेनिंग वगैरह का था, ऑर्डिनरी थिंग्स। ब्रास किसने करना था? तो मैंने DV दत्ता से बात की। मैंने कहा यार ये ब्रास टेस्ट करना हो तो कैसे करें? कहता है तुम नहीं कर सकते हो, ये तो BARC से करवाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर करवा दो। तो कहता अच्छा किसका करना, दूध का करना? मैं कहा नहीं, दूध का नहीं करना। मैंने कहा दूध का कर भी देंगे तो क्या लगेगा, ये थोड़ी लगेगा कि दूध से ही जाके वो उसको सिरोसिस हुई। तो कहता फिर तू क्या कहता है? मैंने कहा कि हमारे पास ऑटोप्सी लिवर पड़े हैं ICC के, उनमें से देखते हैं कि उनके पास कॉपर है कि नहीं है। कहता है हाँ बहुत अच्छा है। सो ही टुक आउट पीसेस फ्रॉम livers of ICC and he took them to BARC and he found that copper there was 400 times
that in a normal liver. He said, here is the problem. And he went on to present this paper in the Conference of Gastroenterology. Fortunately for us, he did it before Anand Pandit presented his data on histochemical staining of copper in liver biopsies. So we got the priority of having found that copper is the element, high element in cirrhosis. And we suggested that इसको अगर आप ट्रीट करेंगे चिलेटिंग एजेंट से तो ये ठीक हो सकता है. And we started the trial with chelating agents, and every 6 months we did biopsies on the livers of the treated cases, and in 2 years we found बच्चा ठीक हो रहा है, लिवर फंक्शन ठीक हो रहे हैं और उसकी बायोप्सी ठीक हो रही है. जो एस्टेब्लिश्ड सिरोसिस थी वो ठीक हो रही. दैट वाज ए सरप्राइज टू अस कि फाइब्रोज्ड लिवर नॉर्मल हो सकता है. That is what actually happened, and Bushnur Mut, a pathologist, joined me in this. We published it in Human Pathology, and the editorial wrote that it's for the first time that an established cirrhosis has been demonstrated to be disappearing. So that is how the ICC tangle was solved. Now, हाँ, नेक्स्ट आई कम टू, यार ये काफ़ी नहीं कि आप अच्छे बच्चे सिलेक्ट करो या अच्छी टीम सिलेक्ट करो, उनको इन्वॉल्व भी करो. ये नहीं कि छोड़ दो आप. फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि छुटानी साहब के वक़्त में अमृतसर के जो आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको प्रेफरेंस मिलती थी हर चीज़ के लिए. तो हमारे एक ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर थे गरेवाल, वो मद्रास से आए थे. मद्रास के बाद ही हैड डन FRCS फ्रॉम इंग्लैंड इन ऑर्थोपेडिक्स. ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स. तो मैंने उस दिन पूछ लिया, मैंने कहा यार वो एनुअल फंक्शन है उसमें तेरी क्या ड्यूटी है. कहता मेरे को तो गमला कमेटी भी नहीं मिली. तो यू नो दैट वाज द काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. आई एम इलस्ट्रेटिंग दिस कि अगर आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हो, दे फील लेफ्ट आउट. ये गलत चीज़ है. आप हर एक को इन्वॉल्व करो, तभी वो इन्वॉल्व रहेगा. ये बड़ा ज़रूरी है. सो हियर आई से इन्वॉल्व ऑल कोलीग्स in your daily affairs. Then the next advice I am giving here is more important even than that. वो ये है कि आपका सबसे प्रेशियस एलिमेंट जो है, जो आपके अस्पताल में है, वो CT स्कैनर नहीं है या PET स्कैनर नहीं है. It's the man behind. It's the man who mans that and manages it and reports it. अगर वो ना हो तो मशीन क्या है? मशीन पड़ी रहेगी बेकार. So have some value for your colleagues. उनकी कदर करो, उनको अच्छी तरह से बिहेव करो, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करो. They are your precious element. उनको खुश रखोगे तो खुशी से काम करेंगे, जितना कहोगे उतना काम करेंगे. मैंने तो आज तक नहीं देखा, 30 साल मैंने यहाँ काम किया, किसी ने मुझे कोई भी काम कहा हो कि उसने मुझे मना कर दिया हो. और मैंने ये भी कसम खा के कहता हूँ कि किसी को ऊंचा नहीं बोला मैं. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मैंने पोवाला साहब से सीखा. एक दिन मैं एक नर्स के ऊपर शाउट कर रहा था, उन्होंने सुन लिया. मुझे कहते हैं ब्रिज कम टू माय ऑफिस. मैं गया ऑफिस में, मुझे कहते हैं वेयर वॉज द नीड टू शाउट ऑन दैट पुअर गर्ल. मैंने कहा साहब उसने
दवाई गलत दे दी। तो उसको समझाओ कि ठीक डोज कैसे करना है। बोलने से क्या ज़्यादा समझ आ जाएगी उसको। तो मुझे कहते हैं आई कैन मेक योर ब्लड कडल विदाउट रेजिंग माई वॉइस। यू डोंट नीड टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू हैव लॉजिक इन योर व्हाट यू वांट टू से। उस दिन से मैंने कभी किसी को ऊंचा नहीं बोला, और मैं सीख गया हमेशा के लिए कि किसी से बात करनी है कमरे में बुला के बात करो, उसको समझाओ। समझाना ज़रूरी है, उसको नीचा दिखाना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट योर जॉब टू ह्यूमिलिएट हिम, इट्स योर जॉब टू रिफॉर्म हिम। एज ए टीचर वी आर सपोज टू रिफॉर्म हिम, एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम पोहवाला अगेन। तो फैकल्टी जो है आपकी, उसको ट्रीट देम लाइक मोस्ट प्रेशियस डायमंड। नेक्स्ट आई कम टू मोटिवेशन। आपके पास मर्सिडीज़ है, पर मर्सिडीज़ में प्लग नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आदमी है, अच्छा है, पर मोटिवेशन नहीं है तो काम नहीं होगा। तो मोटिवेट करना आदमी को बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एंड द मैन हु एक्टेड ऑन दिस motivation is also here, Dr. Vijay Kumar. He was working as a research officer in the Department of Pediatrics at AIIMS. A girl 3 months old or something like that was brought in, pulseless, cold, acidotic, and virtually you could have said that she would be dead in next 2 hours. So जब उसको देखा तो मैं भी I happened to be in the ward at that time, तो विजय को मैंने बुलाया। मैंने कहा विजय आप देखिए इसको, ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको संभालो। तो जाने से पहले वो बच्चे की माँ ने मुझे कहा कि सर इसके पिताजी जंग में गए हैं, ही इज़ ए मेजर, ही इज़ फाइटिंग एट द वेस्टर्न फ्रंट। तो आई गॉट ए चांस, आई टोल्ड विजय, आई सेड विजय, व्हेन दिस गर्ल्स फादर कम्स बैक वी हैव टू गिव हिम ए लिविंग चाइल्ड, सो प्लीज लुक आफ्टर हिम so that we can save her. And Vijay worked throughout the night. एक स्टूल के ऊपर ऐसा मेज़ जिसके ऊपर वो पड़ी हुई है, ड्रिप चल रही है, and Vijay Kumar is monitoring him throughout the night, sitting on a stool. And next morning the child is very much better. Next morning after that, child is smiling back at us. And lo and behold, 20 years later, I get an invitation for the marriage of this girl to Captain so-and-so. And marriage is to be celebrated in Chandigarh, because the boy's family belonged to here. विजय तो WHO में गया हुआ था, तो I made it a point to go and attend. Mrs. Bakshi, who was the mother, she attended to me, took me to the couple, told the boy, he is the one who saved this girl for you. And I said, no, I am not the one, but I am representing someone else. But I said, having seen कि उसका लिखा हुआ था मेजर कैप्टन सो एंड सो, मैंने कहा उसकी बच्ची को जो थी 23 साल की, अब मैंने कहा बेटा तू शेर दी बेटी है, शेरनी है, तू भी शेर चुने हैं। You know, everybody was so happy कि their effort to select
an army man for the husband of the girl who was fatherless orphan was being appreciated, and I was genuinely happy for her. तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपके मुंह से बेख्तियार निकल जाती हैं और दूसरे को, बंदे को वो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढा करो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ढूंढा करो। ये नहीं करना कि एक मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हुआ, तो जो यहाँ के रेडियोथेरेपिस्ट थे उनके पास गए वो, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए आपके कैंसर हुआ है लंग में, आपको 2 महीने मिलेंगे सिर्फ, आपने जो कुछ करना है 2 महीने में कर लो। मैन स्टार्टेड वीपिंग राइट देयर, और घर में अफसोस उसी दिन से हो गया शुरू। तो ये भी कहने का तरीका है, और ये भी कहने का तरीका है कि बीमार तो बहुत है पर हम इलाज करते हैं, देखते हैं कि दवाई असर करेगी कि नहीं करती है। यू आर नॉट कमिटिंग एनीथिंग, बट यू आर स्टिल नॉट प्रॉमिसिंग द मून नॉट फ्राइटनिंग हिम। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कभी याद रखिएगा बुल्ले शाह की बात। बुल्ले शाह कहता है कि प्यार भरा दिल कदे ना तोड़ो, इस विच रब है रहिंदा। बुल्ले शाह ये कहंदा, प्यार भरा दिल कदे ना तोड़ो, इस विच रब है रहिंदा। नाउ इफ़ यू ब्रेक द होप, वो क्या देखेंगे उसको, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके लिए। तो ये ऑलवेज कीप some hope alive, don't destroy all hopes. This is what I do, and I have throughout done that. So motivation हो गया, soldier's child हो गया, rules are for helping people. This is a very important thing when you assume situations of responsibility. हमारे एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होते थे एम्स में. He was an ex-army man and he was very liberal in the sanction of whatever medicine had been prescribed by the different doctors of AIIMS. तो क्या हुआ कि there was a list of forbidden medicines also. तो कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जो कि परमिटेड लिस्ट थी और फॉरबिडन लिस्ट थी. परमिटेड लिस्ट में कुछ दवाइयाँ 2-3 थी, नहीं जो नहीं थी वो उसको प्रिस्क्राइब की हुई थी. अब वो मेहरा साहब हमारे थे, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स के, उनके पास आया कि साहब मेरी क्या गलती है, डॉक्टर ने, आपके डॉक्टर ने लिखी, मैंने ले ली, ये रसीद है, तो अब आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपकी ये सैंक्शन नहीं होगी, कि इट इज़ नॉट ऑन द परमिटेड लिस्ट. तो मैं सामने बैठा हूँ, किसी काम के लिए गया था, तो मेहरा साहब कहते हैं बुलाओ उसको, क्लर्क को बुलाया. रामनाथ, इज इट ऑन द फॉरबिडन लिस्ट? नो सर, इट्स नॉट ऑन द फॉरबिडन लिस्ट. लाओ फिर कागज़ लाओ. ही रोट इट्स नॉट ऑन द फॉरबिडन लिस्ट, देयरफॉर परमिटेड. बात छुट्टी हुई. तो रूल्स आर फॉर हेल्पिंग पीपल, not for obstructing people. I saw an example of it in England. मेरे को 150 पाउंड सैंक्शन थे फॉर
books to be imported as part of my study. पर वहाँ पर while I was there, डबलिन में इंटरनेशनल कांग्रेस हो रही थी, तो मेरा जो मेंटर था वो कहने लगा कि डॉक्टर वालिया, आई थिंक यू शुड सी दिस कांग्रेस, सी हाउ इट इज़ बीइंग डन एंड व्हाट इज हैपनिंग द वर्ल्ड टुडे. तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो यू विल हैव टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेट योर दिस बुक अलाउंस चेंज टू कॉन्फ्रेंस अलाउंस. तो मैं गया उसके पास, वो कहता है वी हैव नेवर डन इट बिफोर, बट यू कम बैक टू मी ऑन मंडे, वी विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. तो आई वेंट बैक ऑन मंडे. ही सेज, डॉक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू द 150 pounds फॉर कांग्रेस. मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर. नो सर, you don't have to thank me. I said, but how did you do it? He said, we just calculated that 150 pounds is to further your education. Whether you further your education with books or by attending an international congress, it's the same thing. So we give you the congress, and that is that. And he said, rules are for helping people. And I learned that lesson from an administrator in England. The next thing I want to talk to you, and this is most valuable, which has helped me utmost. मेरा टाइम कितना रह गया बता दो. Have I crossed? हैं? अभी है? अच्छा, खैर, ये ज़रूरी है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको. इसको मैंने कहा है कि कैच ऑल अपॉर्चुनिटीज़. ये जो कुछ आप देख रहे हो इधर, ये सब कुछ कैचिंग ऑल अपॉर्चुनिटीज़ का रिजल्ट है. कैन यू बिलीव इट कि आई एम गोइंग टू श्रीनगर on a flight to interview some candidates for pediatric department, and when I get down, during the flight, the lady who was the flying assistant, she announced that the captain of this flight is Mr. Rajiv Gandhi. मेरे दिमाग में एकदम चीज़ खटकी. मैंने कहा यार इसको रोकना है. नीचे उतरे तो मैं उसके दरवाजे के पास खड़ा हो गया. तो आई सेड, सर आई वांट ए मिनट विद यू. फिर भेजा कि अब तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गया. फिर भेजा कि आपको फिर से याद करा रहा हूँ. नो रिप्लाई. मैं क्या छोटी सी चीज़ हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई गम नहीं, कि कोई जवाब नहीं. पर आप मेरी इम्पल्सिवनेस देखिएगा कि एक मौके को यूज़ करना है. इसके बाद आई जवाहरलाल नेहरू सेंटिनरी. उसमें तरह तरह के मंगवा रहे थे प्लान. मैंने प्लान भेज दिया कि जवाहरलाल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, चाचा बुलाते थे, तो एक चाचा नेहरू अस्पताल बना दिया जाए बच्चों के लिए, दिल्ली में बना दिया जाए. कोई एक्शन नहीं. मेरे से भी अच्छा प्लान किसी ने दिया, NG रंगा, द ओल्डेस्ट MP. ही सेड कि हर एक गांव में एक कुआं लगवा दो. बीबियों को 5-5 मील दूर जाना पड़ता है, 2-2 घड़े उठा के लाना पड़ता है. वो भी नहीं किया. किया क्या? इंटरनेशनल सेमिनार ऑन नेहरू. अरे भाई वो सब कुछ हिस्ट्री में लिखा है, क्या हो गया नया? नथिंग हैपेंड. आई मेट संजय दत्त ऑन सम ओकेजन. उसको कहा, उसने भी कुछ नहीं किया.
मैं बड़ा परेशान। देन इंदिरा गांधी हैड बीन शॉट और अगले साल उसकी सेंटिनरी के लिए कोई प्रोजेक्ट्स मांगे गए। मुझे सुबह 6 बजे चीफ कमिश्नर का फ़ोन आया, ओ भाई ओ डॉक्टर वालिया तुमने कुछ कर सकते हो। उस वक्त मैं आई वॉज चेजिंग हिम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन सेंटर, पर वो तो मैंने ना किया, मैंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का ही डाल दिया। वो लेके गए उधर, गवर्नर साहब अर्जुन सिंह थे, तो किसी ने कहा था ये बहुत छोटी चीज़ है फॉर इंदिरा गांधी के नाम पर, वो भी कट गया। सो इस तरह से मैं तो लाइक एनी, मेरी आदत ये थी कि अगर आइडिया है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता और इंस्टीट्यूट का फ़ायदा हो सकता है तो कर डालो। दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। 2 एडवर्टाइजमेंट पढ़े मैंने फ्रॉम जिंदल एल्यूमिनियम, दोनों में अप्लाई किया। एक में हमें हॉल मिल गया नियर द ऑब्स्टेट्रिक्स वार्ड फॉर पेशेंट्स टू रेस्ट, पेशेंट्स रिलेटिव्स टू रेस्ट। एक बार हमें न्यूनेटल यूनिट जिसमें अभी भी चल रहा है वो मिल गया। उन्होंने कहा कि आप जितना आपका खर्चा है आधा आप डालो तो आधा हम दे देंगे। मैंने वो आधा डाल के प्रपोज़ल फाइनेंस कमेटी में दे दी। फाइनेंस कमेटी ने कहा ठीक है आप ले लो, 20 करोड़ मिलता है तो ले लो आप उनसे, हम आपको इतने देते हैं। तो इस तरह से करके यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ डोंट किल योर गुड इम्पल्सेस। गुड इम्पल्स इज मेंट टू बी एक्टेड अपॉन। और ये जो ड्रीम है ऑफ दिस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ये मेरे दिमाग में 1968 व्हेन आई वाज वर्किंग इन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट उस वक़्त से चल रहा था। तो 1-2 बार जो मेरी बात हो गई कहीं किसी कंसल्टेंट से वहाँ कि यू वांट टू गो बैक, व्हाट फॉर? आई सेड आई वांट टू बिल्ड ए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन चंडीगढ़। यू हैव ए वेरी एम्बिशियस प्लान। मैंने कहा एम्बिशियस तो है बट चीज़ें ड्रीम करने से ही बनती हैं। क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा था अहमद फराज का। अहमद फराज कहता है कितनी महरूम हैं वो आँखें जिन्होंने कभी ख्वाब ही नहीं देखा। तो मैंने तो बहुत ख्वाब देखे हैं, तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट ख्वाब जो था, घड़ी घड़ी आता था मेरे को कि भाई अस्पताल ज़रूर बनाना है, और उसको पक्का कर दिया पोवाला साहब ने। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने हम 3 जो हम एमडी कर रहे थे, चाहे मेडिसिन में कर रहे थे, वो कहते हैं बेटा आई want to see a children's institution being developed around each one of you. अब this was the word of God for us, क्योंकि पोवाला तो चीज़ ही ऐसी थी कि आप उसको ना नहीं कर सकते थे कुछ भी। तो उस दिन से ये दिमाग में फंसा हुआ था कि बनाना है। किस तरह बनाना है ये कुछ पता नहीं। इतना भी नहीं पता कि सरकारी नौकरी करनी है कि नहीं करनी, ये भी नहीं पता कि कहाँ करनी है, क्या करना है, बट बच्चों का अस्पताल बनाना है। दैट वॉज द ड्रीम। तो दैट इज़ व्हाट ब्रॉट मी हियर एंड नॉट आई डिडंट स्टे ऑन इन एम्स बिकॉज आई न्यू कि मेरे आगे तो घई साहब हैं, उनको तो ड्रीम ही कोई नहीं है, तो वो तो बनेगा नहीं, अभी तक नहीं बना। ये हालत होती है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है एक ड्रीम को फॉलो करने के लिए। सो हैव ए ड्रीम, कुछ भी ड्रीम हो, अच्छा ड्रीम होना चाहिए। डोंट ड्रीम ओनली ऑफ माधुरी दीक्षित। दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी है
लर्न टू वर्क विद द पब्लिक। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हम डॉक्टर लोग सोचते हैं कि अपना काम इतना ही है कि मरीज़ आया, उसको देख लिया, छुट्टी हो गई। ऐसा नहीं है। बच्चों का एडवोकेट कौन है? या टीचर है जो कह सकता है कि जी स्कूल अच्छे होने चाहिए, या डॉक्टर है जो कहता है कि अस्पताल अच्छे होने चाहिए। बाकी तो सारी दुनिया ही बच्चों के अगेंस्ट है। वो तो सब कहते हैं कि एडल्ट्स के लिए चाहिए, बुड्ढों के लिए चाहिए, जग अस्पताल कैंसर का चाहिए, अस्पताल हार्ट का चाहिए। कोई मांगता देखा है अपने बच्चों का अस्पताल? जितने मजदूर हैं वो कोई हेल्थ की चीज़ मांगते ही नहीं है। तो द रिजल्ट इज द चाइल्ड इज द मोस्ट निग्लेक्टेड वॉइसलेस सब्जेक्ट ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। अगर डॉक्टर लोग नहीं करेंगे उसको एडवोकेट, तो कौन करेगा? यू हैव टू प्लीड फॉर ए चाइल्ड। तो उसके लिए यू हैव टू जॉइन सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। So I joined Rotary Club. As a member of Rotary Club, I made them build the Rotary Sarai in this thing, our area here. वो इतनी आसानी से बन गई। तो मेरे पास एक मरीज़ आया, यहाँ आउटडोर में बैठे हुए, वो कहने लगा जी मैं सेक्रेटरी हूँ ये सब ग्रेन मार्केट कमेटी का। तो मैंने कहा तो फिर तो आप बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में हैं, तो आप कुछ हमारी मदद करिए। तो कहता क्या मदद करूं? मैंने कहा देखिए आप लोग हरिद्वार जाके सराय बनवाते हैं यात्रियों के लिए, यहाँ पे यात्री आते हैं बाहर आप देख लीजिए, आके रात को देख लीजिए, घास पे लेटे हुए होंगे, बारिश आती है, ठंड आती है, सांप आते हैं, उनको बेचारों को कोई जगह ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप एक सराय बनवा दीजिए यहाँ पर, ज़मीन तो हमारे पास है। तो कहता है हमारे गुरुजी आने वाले हैं अगले महीने, अगर मैं आपको बुलाऊं तो आप आ जाएंगे? मैंने कहा ज़रूर आ जाऊंगा। सो आई गॉट ए टेलीफोन वन डे कि आप इस सैटरडे को दोपहर के 3 बजे आके हमारे गुरुजी को मिलिए। मैंने गुरुजी को वो सारा समझाया कि जी आप कई जगह सराय बनाई होंगी आपने, कई और अच्छे काम किए होंगे, ये मरीज़ों की मदद करने आते हैं रिश्तेदार और खुद बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जी ये तो होता है। तो मैंने कहते कितना कॉस्ट करेगा? मैंने कहा जी हमारे ये लोग कह रहे हैं कि 14 लाख, तो 100 बंदे की 14 लाख, चलो आज ही अपील कर देते हैं। वो अपील कीजिए उसने और तौलिया बिछा दिया गया उनके सामने। बिलीव मी विद इन हाफ एन आवर 8 लाख रुपया कमिट हो गया। 2-3 लाख तो वहीं मिल गया, बाकी 8 लाख कमिट हो गया। और 6 महीने के बाद उन्होंने बना के खड़ी कर दी और हमें कहा कि आप आके कब्ज़ा ले लीजिए। हमने टेंट वेंट लगवा के चाय वगैरह का बंदोबस्त करके उनको बुलाया, श्री हरि जी को, और पहले तो उनकी तारीफ़ की उनको सर, और वो जो बन गई है सराय उसका चक्कर लगवाया, दिखाया। और फिर उनकी जब बारी ख़त्म हुई, मेरी बारी थी वोट ऑफ थैंक्स की, तो मैंने कहा कि उन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने तो कहा था 14 लाख में बनेगी, हमने तो 8 लाख में ही बना दी, तो 6 लाख बच गया। तो मेरी बारी आई तो मैंने बात को पकड़ लिया। मैंने कहा जी शायद भगवान की मर्ज़ी ये थी कि वो 6 लाख भी आप इसी काम के लिए लगा दें, तो 2 लाख और डाल दीजिए, एक सराय और बन जाएगी। बिल्कुल बेशर्म होकर मांगना पड़ता है। कहने लगे हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, 2 लाख क्या होता है। वो जी 2 लाख और डाला उन्होंने। तो हमने
वो भी एक बनवा दी उनके लिए। उनका नाम लगा हुआ श्री हरीश राय नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नाउ दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ कि कम्युनिटी के साथ आप काम करिए तो आपका बहुत कुछ आप करवा सकते हो, और वो तब आपको आएगा अगर आप कम्युनिटी को की सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। मैंने ये सीखा बाय जॉइनिंग रोटरी क्लब, नहीं तो वी डॉक्टर्स आर सोलोइस्ट्स। तो ये तो करना ज़रूरी है। इन दी हॉस्पिटल अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो यूज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज़ दी ओनली वे, collaboration is the only way we solved the ICC tangle. Collaboration is the only way in which more than half the articles of pediatrics are written. कोई ना कोई ऐसी चीज़ जानता है जो हम नहीं जानते। How can everybody know everything? अच्छा तो ये होगा कि like our good friend, that Kashmiri gentleman who was working with us, यहाँ लेक्चरर था, वहाँ एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गया। डॉक्टर भान। नो, डॉक्टर भान वॉज डूइंग हिज बैक्टीरियोलॉजी ऑल हिमसेल्फ। तब उसने सारा अपना जो काम है, सिर्फ भान का नाम मिलता है, उसने बैक्टीरियोलॉजिस्ट को यूज़ नहीं किया। तो या तो आप खुद सीखिए, नहीं सीख सकते तो कोलैबोरेशन करिए। कोलैबोरेशन करोगे तो ज़रूर आपको देना पड़ेगा क्रेडिट टू द अदर मैन। कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्या है, आप नंबर 1 हो या 2 हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 2 नंबर को भी उतना ही क्रेडिट मिलता है जितना 1 नंबर को मिलता है। चलो मैं आगे आता हूँ। ये बात मैंने कह दी है, आपको बता दिया कि एपीसी के लिए मुझे 6 बार सबमिट करना पड़ा, और पुअर अनिल नारंग, ही हैड टू चेंज द टेक्स्ट 6 टाइम्स और फिगर्स 6 टाइम्स, क्योंकि बजट बढ़ना ना करना कम करना वो करना पड़ता था। तो आई यूज्ड टू आस्क अनिल नारंग टू डू इट, एंड ही यूज्ड टू डू इट ग्लैडली। अनिल नारंग का एक और बड़ा अच्छा रोल था, वो ये था कि जितना इक्विपमेंट हमारे पास उस अस्पताल में था वो सारा अनिल नारंग का इंडेंट किया हुआ था। ही वॉज द ओनली मैन हु वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन परचेज ऑफ इक्विपमेंट। यहाँ आके और किस्सा हो गया कि वो सिर्फ न्यूनेटोलॉजी के लिए रह गया, और यहाँ पे जो यहाँ वाले थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। खैर आगे आइए। हाँ, गुड कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। मेरे पास एक एमपी साहब थे, वो असम के एमपी थे पर रहते यहाँ थे चंडीगढ़ में। ताजुब है, पंजाबी था वो, पर वो राज्यसभा से मेंबर एमपी बना हुआ था फ्रॉम असम। वो एक दिन न्यूनेटल यूनिट देखने आ गए। भक्कू साहब तो थे नहीं यहाँ पे, ही हैड गॉन फॉर सम वर्क, परहैप्स कॉन्फ्रेंस, और परहैप्स ही वाज नॉट देयर। तो मैं खुद दिखाने ले गया उनको। तो इनक्यूबेटर के पास खड़े हैं, बच्चा है वो 1 किलो से भी कम है। Then to emphasize this point, I asked the resident, I said, what is the weight of this child? He says, sir, 9 kilograms. 900 grams. तो मैंने कहा, सर, less than the chicken you eat. Just to hit the thing on his head. Really? And what is this tube going into him? मैंने कहा, सर, ये ventilation हो रही है इसकी. Supposing the light goes off, मैंने कहा, सब then a life is switched off.
और मैंने 2 सिक्सर मार दिए थे उसके ऊपर। वो कहता है यू डोंट हैव ए जनरेटर? मैंने कहा नहीं सर, वी डोंट हैव ए जनरेटर। ओके कम विद मी। मुझे पकड़ के डायरेक्टर के पास ले गया, पाठक साहब के पास। पाठक साहब क्यों जी आपके पास जनरेटर नहीं है? कि ऑपरेशन थिएटर में तो है जी। नहीं जी मैं उधर से आया हूँ नर्सरी से, वहाँ तो नहीं है। और जी वहाँ पर वो इंटेंट किया हुआ है, अभी आया पहुँचा नहीं। नहीं फिर जल्दी मंगवाइए। तो दिस इज़ हाउ यू नो वी गॉट थिंग्स। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सच को छुपाया ना जाए। बिफोर आई बिकेम मेडिकल सुपरिटेंडेंट सच को छुपाया जाता था, सिर्फ कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी दिखाई जाती थी, बाकी कुछ नहीं दिखाया जाता था। मैंने उनको इमरजेंसी का राउंड दिलवाना शुरू किया, जहाँ के एक कमरे में 8 बच्चों का जगह थी और 40 किड्स यूज्ड टू लाई। बिस्तर के ऊपर भी 2 बच्चे हैं, बिस्तर के नीचे भी 2 बच्चे हैं, बेंच के ऊपर भी 2 माएँ बैठी हैं, गोदी में बच्चे हैं, फर्श के ऊपर भी 4 बच्चे हैं। हमें तौबा तौबा यार, कमाल है। तो दिखाते क्यों नहीं हो आप? और एक बंदा है वो दिखाए, वो क्या करे? तो डॉक्टर सिंघी वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पीडियाट्रिक इमरजेंसी। ये बेचारा परेशान, इतने बच्चों को कैसे संभाले? तो ये एक दिन मेरे पास आए कि जी मेरे से तो ये नहीं होता है, बहुत काम है। मैंने कहा आई नो कि काम तो बहुत ज़्यादा है, आई विल ट्राई टू गिव यू सम रिलीफ। तो मैंने इनको दो रेजिडेंट्स और पोस्ट कर दिए उधर, बट साथ में मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 8 डिपार्टमेंट्स के लिए मांग लिया, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में यही प्रॉब्लम थी कि कभी मेडिसिन का बंदा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी सर्जरी का आ रहा है, नहीं आ रहा। जब आ रहा है तो उस वक्त बुलाने जाओ उसको, पेशेंट सीरियस है, वहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू नो थिंग्स वर बीइंग मैनेज्ड बाय अस एट दैट टाइम। वन ऑफ द कार्डिनल रूल्स, अगर आपने सरकार में कुछ मांगना है तो फाइल बना दो। This was given to me by my neighbor who was an IAS officer. कहता है फाइल बनाओ, उसमें सारा प्रोजेक्ट लिखो, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, और खर्चा तो कम पैसा ज़्यादा किया जा सकता है, बट फाइल होनी ज़रूरी है। कहता तुम मर जाओगे, फाइल नहीं मरेगी। And that we have seen. Mandal Commission, Mr. Mandal died long ago, but VP Singh revived that Mandal Commission. आप सबके सामने है, तो फाइल ज़रूर बनवाओ। जो भी चीज़ है, अगर फाइल नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, सीधी लड़ाई मत करो, कन्फ्रंटेशन से नहीं काम बनता। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, जो इनिशियल प्लान थी पीडियाट्रिक सेंटर की, वो दैट हैड टू गो थ्रू दिस गवर्निंग काउंसिल, हैड टू गो थ्रू आवर जो हमारी काउंसिल होती है यहाँ की, स्टाफ काउंसिल। और मुझे मालूम था कि डॉक्टर चुग विल नॉट अलाउ नेफ्रोलॉजी टू बी separated, and Dr. Chopra will not allow neurology to be separated. कि मेरी इनसे बात हो चुकी थी, तो मैंने कहा ये बाकी सारे सब्जेक्ट लिख दो, ये 2 सब्जेक्ट नहीं लिखने। बट फिर आखिर में मैंने न्यूरोलॉजी को अंडर द कवर ऑफ डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी डाल दिया, दैट ही कुडंट ऑब्जेक्ट टू।
इसलिए आप सरप्राइज हो गए। कार्डियोलॉजी भी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था वो कहेंगे कि डबल सेटअप कैसे कर देंगे कार्डियोलॉजी का। तो ये 3 चीज़ें नहीं लिखी गई, बाकी सब की सब मैंने ऐड कर दी। आप जो दोज ऑफ यू हु आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट नाउ, आप देख रहे हो कि 9 सब्जेक्ट्स में तो डीएम हो गया, और ये 3 जो हैं, ये तीनों के तीनों सबसे बाद में लिए गए हैं, क्योंकि दिस हैपेंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ डॉक्टर चुग एंड चोपड़ा। 2 तो वहाँ हुए, और तीसरा जो है ये पल्मोनोलॉजी तो अब बना है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि कन्फ्रंटेशन जहाँ से अवॉइड हो सकती है उसको अवॉइड करो। बाईपास सिकंदर ने किया था। पोरस साहब इधर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और उसने दरिया सिंध को पीछे से क्रॉस करके उधर से भेज दिया। बाबर ने 4000 लोग अपने इब्राहिम लोदी के पीछे से भेज दिए। 16000 टोटल थे, इब्राहिम लोदी के 1 लाख थे। उन 4000 ने जो पीछे से आए, जमुना को क्रॉस करके हफड़ा दफड़ी मचा दी। तो कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट इनफ। अवॉइड कन्फ्रंटेशन इफ़ यू कैन। खैर चलो, आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी येट मोर टू, बट इट्स ए नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। खैर, मैं आपको 2 चीज़ें अब एंड में कहना चाहता हूँ। वो ये है, दैट इज़ my father's advice to me, and that's general advice, nothing to do with medicine. वो कहते थे कि humility is far more productive than arrogance. Arrogance जो है, it annoys anybody and it sets him up against you. तो arrogance नहीं करनी, humility से बात करो, और humility से जो कुछ हो सकता है वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता तो arrogance से नहीं होगा। तो वो मुझे शेर शायद याद आ जाए। सर मोहम्मद इकबाल को कोट किया करते थे वो, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। इफ़ यू वांट ए स्टेटस इन लाइफ, बी हम्बल। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। द सीड बिकम्स ए फ्लावर or a garden by mixing into the dust. That is what Iqbal said. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये मुझे उन्होंने तब कहा जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना एम्स में, कि बेटा अब तुम एकेडमिक में पढ़ गए हो, अब तुम इसमें राइज़ करोगे, सालों साल, जितने साल भी लगे, पर तुम राइज़ करोगे। तो ये याद रखना कि डोंट बिकम एरोगेंट, बी हेल्पफुल टू पीपल एंड बी हम्बल इन वट एवर स्टेटस यू आर। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब ह्यूमिलिटी थोड़ी आपस में कल्टीवेट करें। अगर वो हम करेंगे तो ये है कि आपके रिलेशनशिप बने रहेंगे। आप किसी से भी बदतमीज़ी से मत बोलिए।
वो सालों के रिश्ते छोटी सी बात पे हम गवा देते हैं, बाय बीइंग रूड और नेस्टी टू समबडी। आप सोचिए कि ये जिस बात के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट? नहीं है तो ईजी वे टू गेट आउट ऑफ दैट, फॉर दैट मैटर एट दैट टाइम। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप उस मामले को हार जाओ और निकल जाओ। आपको अच्छा भैया सोनलाल, वी विल डिस्कस दिस सम अदर डे, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ, छुट्टी। ना आप हारे ना आप जीते, फिर सोच लो, फिर कोई नई आर्गुमेंट मिल जाएगी, फिर आप कर लेना। तो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैकल्टी में भी, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ। ये इतना ज़रूरी है कि यू कांट बिलीव इट। ये जो है आपका न्यू OPD, IOPD, de-addiction center and several flats for residents. This was under the military hospital. मिलिट्री हॉस्पिटल को नया अस्पताल बन चुका था पंचकुले में, पर ये खाली नहीं कर रहे थे क्योंकि दिस वाज लोकल लोगों को ये पास पड़ता था, जिनको मरीज़ों को रोज़ की चीज़ें दिखानी, दवाइयाँ लेनी है, वो यहाँ से आते लेते थे। तो आई वॉज द डायरेक्टर। मैंने एक चिट्ठी लिखी, वो भी इम्पल्सिव थी। पहली चिट्ठी लिखी, मिस्टर NN वोरा, मैंने पढ़ा अखबार में, हैज़ बिकम द डिफेंस सेक्रेटरी। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिज ऑक्यूपाइंग एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट वो लिख दी। 6 हफ्ते के बाद जब ये खाली नहीं कर रहे थे, इनके जनरल को मैंने लिखा, ये दे रिफ्यूज टू इवन रिप्लाई। तो फिर मैंने दूसरी चिट्ठी उनको लिखी। मैंने कहा, सर, आई एम एड्रेसिंग यू ऑन दिस इम्पॉर्टेंट मैटर बिकॉज आवर 6th 5-year plan will be delayed unduly if this space is not vacated. उसका एकदम जवाब आया मुझे, क्यों नहीं खाली करते हैं? मैंने इनको नया अस्पताल, प्रोफेसर भक्कू who was looking after him, I believe has gone to the conference, न्यूनेटल कॉन्फ्रेंस, उस पर गए थे डॉक्टर साहब। तो मैं गया तो देयर वाज अ तमिल बॉय, मूर्ति ने मुझे बताया, दिखाया ये, एंड ही सेज, सर इनको बच्चे को बुखार आ रहा है, देयर इज़ नो ऑब्वियस फिजिकल साइन, सब कुछ क्लियर है। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? द बॉय वॉज इन द लैप ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो मैं क्या, बीबी जी ये बच्चे नू ज़रा इत्थे लिटा दियो। वो लिटाया। I turned the baby over and looked at the 2 gluteal regions. One was bigger than the other. मैंने कहा, मूर्ति, why is this bigger than the other? मूर्ति को सोच पड़ गई। मैंने कहा, इसका एक्सरे कराओ। तो it was a hip which had been infected. We called Dr. Negi. He took over for surgery, emptied the pus, and the child recovered from that hip. He was left with a little limp till now, but he was saved at least. So that was my only acquaintance with Mr. Vora. But he remembered that he had called me on a Sunday without knowing me or anything at all, and I had just come without any bahana, anything,
and solved his problem. Now this is what is material to the problem. Be good to people who have a problem. Help them and they will help you. This is most important lesson that I have learnt. And this is how we got 18 acres of land. Something similar happened with Sarla Grewal, who was Secretary Health here. And her child got malaria and was shivering. She thought it was a convulsion. So she called me. मैं बगैर पूछे चला गया. छुटानी साहब का रूल था कि आप पहले मेरे से पूछिए, अगर किसी को भी बाहर देखना है तो पूछ के जाइए. मैंने तो पूछा नहीं, मैं तो चला गया. मैंने कहा हेल्थ सेक्रेटरी है, मैं कोई आम बंदे के पास थोड़ी जा रहा हूँ. तो खैर वो क्या हुआ, बाई चांस दैट लेडी टोल्ड छुटानी ऑन सम पार्टी कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ डॉक्टर वालिया टू कम एंड सी माई चाइल्ड. वो मेरी तो अगले दिन पेशी हो गई. वो मुझे कहते हैं और सुने तू प्रैक्टिस शुरू करती है. मैंने कहा जी मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी. तो आपने गलत सुना है. कहना नहीं, तूने दो किस्म की प्रैक्टिस होती है, पैसे वाली प्रैक्टिस और वीआईपी प्रैक्टिस. मैंने कहा जी मैंने तो सुना ही नहीं था वीआईपी प्रैक्टिस का. तो खैर आप बताइए कि क्या गलती हुई मेरे से. तुमने वहाँ गया उसको देखने. मैंने कहा जी हाँ गया था. तो आपने किसी से इजाज़त ली थी. मैंने कहा जी टाइम नहीं था, बिकॉज वो कहने लगी कि कांप रहा है बच्चा, कन्वर्शन हो रहे हैं. तो फिर आके कहना था, बताना था कि मैं वहाँ गया था. मैंने कहा ये मेरे को आपके रूल्स यहाँ के पता नहीं थे. दिस हैड हैपेंड विद इन 6 months ऑफ माई कमिंग हियर. तो नाउ दिस वाज माय ओनली एक्वेंटेंस विद सरला ग्रेवाल. उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, और कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई. एंड येट शी was the one who helped us with the pediatric center. She was the health secretary at the time when the crucial decision in the governing council was taken to grant the pediatric center. Now this is how things happen. पर I'm glad कि मैंने तो 8 या 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जुड़ा था. आपने तो कमाल कर दिया, 40 असिस्टेंट प्रोफेसर. मैं तो कहता हूँ, मुझे वो शेर याद आ जाता है आपको देख के कि आपको देखकर देखता रह गया. अब क्या करूं, कहने को क्या रह गया. हम तो 3 आए थे, आपको तो 33 बना दी. तो कमाल है आपका. I praise all my successors who've done such a wonderful job and completed my dream. मैंने तो ड्रीम किया था, इन्होंने उस ड्रीम को वाकया कर दिया, उसको रियल कर दिया. All those who followed, जो कुछ हुआ है इसमें सब टीम वर्क से हुआ है. मेरे वक्त भी हुआ है और मेरे बाद में भी हुआ है. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं यहाँ आता हूँ और देखता हूँ ये फली फूली फुलवाड़ी इतनी अच्छी. द बेस्ट इन द टाउन, द बेस्ट इन द कंट्री, द बेस्ट इन एशिया. आई थिंक यू पीपल आर वंडरफुल. यू आर वेरी लकी टू बी वर्किंग एंड लर्निंग इन सच ए प्लेस. हम तो गरीब थे, हम तो ऐसी जगह वाले थे जब 2 साल पहले बना था और कोई नहीं, कुछ नहीं, थ्योरी पढ़ाई जाती थी. उसके बावजूद अगर हम कुछ कर पाए तो खुदा की मेहरबानी है, उसकी नज़र है. वरना हम क्या चीज़ थे. जैसे बोले तो असिस्टेंट सर्जन बन के रोड गए होते. और एक्चुअली ये हुआ है. जो बच्चा, जो स्टूडेंट हमारी क्लास का फर्स्ट आया था, जिसका बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है MGM मेडिकल कॉलेज में, SN मेहरा,
first in our batch, he opted to become an assistant surgeon when we all refused it, and he retired as a civil surgeon. और क्या बनता वो? सिविल सर्जन ने रतलाम, वहीं पर उन्होंने फिर अपना नर्सिंग होम खोल लिया और अब उसके बच्चे वो चला रहे हैं नर्सिंग होम. And a boy who was far cleverer than me, कभी उसने हमें अपने से ऊपर आने नहीं दिया. But not properly advised. This is the difference between Polwala and the professor of surgery. You see? ये जो मेंटर है आपका, उसने दुनिया देखी है, उसको पता है. उसने मुझे 3 साल से पहले छोड़ने नहीं दिया डिपार्टमेंट. वो कहने लगा कि यू मस्ट हैव 3 years experience as demonstrator before you go for the next job. And that is what made me get selected in AIIMS. You see, so ये चीजें हैं. ना मैं एम्स में जाता, ना मैं यहाँ आता. ये इस ऑल फॉलोस. तो ये कुदरत की खेल भी है, भगवान की दया भी है, और उस्तादों की जो मैं कहूँगा कि बस नियत है, और उनकी हमें जो उन्होंने हमें समझाया कि क्यों नहीं जाना इस वक्त, 3 साल पूरे करके जाओ. ये हुआ, इस तरह से हुआ. और फिर मैं तनेजा साहब का भी मैं कह लूँ, मैं तनेजा साहब के पास गया 3 साल जब मेरे वहाँ हो गए एज डेमोन्स्ट्रेटर कि साहब मैं तो छोड़ना चाहता हूँ. क्यों भाई? मैं अमेरिका जाना चाहना. अच्छा अमेरिका जाना, फिर उतने रहना कि वापस आना? मैं तो वापस आके काम करना. तो वापस आके काम करना तो लाइन में लगोगे. उस वक्त तुम्हारे सामने 6 बंदे और खड़े होंगे जिन्होंने यहाँ काम किया. मेरे को समझ में आ गई कि पहले इंडिया में नौकरी संभालो, फिर जाके आगे बढ़ सकोगे. And I stayed on there only. And Taneja then saw to it that I was selected as a assistant professor. And he had to fight the director. This was told to me by director's PA who was in the room. उसने कहा कि Colonel Amit Chand had to tell the director that professor must have the freedom to make his own deal. That is how I was selected in AIIMS. ये सब बकवास है कि माइनॉरिटीज को ट्रीट नहीं करते हैं लोग. मेरे को तो बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया गया. उधर भी पारसी था, कोई इधर भी पंजाबी था. मैं तो मेरा तो सिख लीडर ही नहीं बना. कोई मेरा सिख प्रोफेसर था ही नहीं, ना इंदौर में ना इधर. मैं कैसे डायरेक्टर तक बन गया? अगर वो माइनॉरिटीज को नहीं बनाते तो मैं कैसे बन गया? मेरे साथ कोई लिहाज हुआ किसी का? ये सब बकवास है. जो जिनको नहीं मिलता वो अपने बहाने बनाते हैं. ये गलत चीजें हैं, ये करनी नहीं चाहिए. नहीं मिला तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट, ग्रेसफुली एक्सेप्ट. नहीं मिला, मैंने अच्छा नहीं किया होगा. दैट्स द एंड. Anyway, thank you very much. Thank you very much, sir.